اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ آج کا دن مناسبت رکھتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے 24 صفر المظفر۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت، یہ بیان کرنے سے بیان نہیں ہو پاتی۔ انتہائی عزت اور عظمت کی مالکہ بی بی، یہ وہ بی بی ہے کہ جو عصمت پر فائز تو نہیں ہے، جس طریقے سے معصومین علیہ السلام کی یہ عصمت شمار کی جاتی ہے، چہاردہ معصومین میں ان کا شمار نہیں ہے، مگر اتنی باعظمت بی بی ہے کہ معصوم امام حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے لیے دعا کرنے کے لیے اس بی بی کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ بی بی وہ بی بی ہے کہ جب دنیا میں تشریف لے کر آئیں اور نام رکھنے کا وقت آیا تو خدا کی طرف سے جبرائیل وحی لے کر آئے اور جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو پروردگار کا یہ پیغام دیا کہ پروردگار نے اس بچی کا نام، اس بیٹی کا نام زینب منتخب کیا ہے۔ یعنی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے نام کی تاثیر کیا ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ وحی خدا کا تذکرہ کریں، وحی خدا کا ذکر کریں، وحی خدا کو اپنی زبان پہ جاری کرنا چاہیں تو فقط آپ نام زینب لیں گے تو یاد رکھیے کہ وحی خدا کو اپنی زبان سے جاری کر رہے ہیں۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ ہم جب بھی آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے ہیں، جب بھی کوئی ان کا ذکر کرے تو آپ کا چہرہ شاد ہوتا ہے، آپ نے ان کی رحلت پر اتنا زیادہ غم منایا۔ اب جبکہ ہم اس دور میں ہیں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو نہیں پا رہے، ان کے ساتھ عقیدت اور مودت کا اظہار کیسے کریں کہ ثابت ہو جائے کہ اگر جناب خدیجہ موجود ہوتی تو ہم ان کے ساتھ بھی ایسی عقیدت اور مودت رکھتے۔ یہ جو سوال کرتے تھے ان کو جناب سرور کائنات نے اس وقت جواب دیا جب خدا نے جناب زینب سلام اللہ علیہ اس گھرانے میں عطا کی، اور جب جناب زینب سلام اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لے کر آئیں اس وقت جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم خدیجہ کا حق کیسے ادا کریں، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا حق کیسے ادا کریں، تو گواہ رہنا کہ یہ جو میری نواسی زینب آئی ہے اس دنیا میں، جو شخص اس کا حق ادا کرے گا، اس کا حیا کرے گا، اس کا خیال کرے گا، وہ سمجھ لے کہ اس نے خدیجہ کا حق ادا کیا اور اس کے ساتھ مودت کا ثبوت دے دیا۔ یہ مقام ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا۔ بڑی مماثلت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ میں اور جناب خدیجۃ الکبریٰ میں۔ پہلی مماثلت یہ ہے کہ جس طریقے سے جناب سرور کائنات کی غمخوار، جناب سرور کائنات کی تسلی دینے والی، تشفی دینے والی، ان کے غم میں غمگین ہو جانے والی جس طریقے سے کیفیت جناب خدیجہ کی ہوتی تھی، وہی کیفیت جناب زینب سلام اللہ علیہ کی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، کہ جناب امام حسین علیہ السلام کی غمخوار بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ جس طریقے سے نبوت کو تسلیاں دیتی تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، اسی طریقے سے امامت کو تسلیاں دینے والی کا نام ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ جب وہ وقت بھی آیا جناب سرور کائنات پر، جب غار حرا میں پتہ لگا کہ کفار نے حملہ کر دیا جناب سرور کائنات پر، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر، پانی لے کر غار حرا میں جناب سرور کائنات کے پاس گئیں۔ یعنی کہ جب
मुश्किल में गिरे हुए थे ना जनाब सरवर कायनात, तो जनाब खतीजा वहां पर पहुंची उनकी मदद के लिए, उनकी इमदाद के लिए, जो कर सकती थी वो करने की कोशिश की। बिल्कुल इसी तरीके से जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी जहां तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद कर सकती थी वो की। मगर यहाँ पे फर्क बयान किया जाता है, जनाब खतीजा का गारे हिरा में जाना, मौला अली अलैहिस्सलाम का हमरा होना, पानी का मौजूद होना, लेकिन जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई के लिए मैदान में निकलती थी और वो देखती थी जाकर कि मेरे भाई पर दुश्मन टूट पड़े हैं, हमला कर रहे हैं, तो जाके देखती थी टिल्ला ज़ैनबिया पर खड़ी होकर देखती थी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। ना बीबी के साथ कोई ऐसा मददगार था जो बीबी के साथ बाहर आता। बीबी अपने भाई की तरफ रुख करती थी, अपने हाथों को अपने सर पे रख के वाह गुरबता कहती थी, फिर मदीने की तरफ रुख करके यही सदा बीबी पुकारती थी, या मुहम्मदा या अलिया। ना पानी मौजूद था, ना कोई ऐसा मददगार मौजूद था जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जब बीबी जाती थी तो उनके साथ। इसके अलावा एक और मुमासिलत जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ये पाई जाती है कि जिस तरीके से दीन इस्लाम की फलाह के लिए, इसकी बहबूद के लिए, इसकी तरक्की के लिए जनाब खतीजतुल कुबरा ने अपना घर बार, अपना तमाम सामान, अपनी औलाद कुर्बान कर दी इस दीन इस्लाम पर। इसी तरीके से जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करबला के मैदान में दीन इस्लाम की बका के लिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी चादर, अपने गोशवारे, अपना जो माल असबाब था। यहाँ पे उलमा एक जुमला बोलते हैं कि कहा जाता है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के 2 बेटे करबला के मैदान में शहीद हुए। उलमा फरमाते हैं कि 2 बेटे नहीं, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की पूरी नस्ल करबला में शहीद हुई। जिस तरीके से जनाब खतीजा ने दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी, उसी तरीके से जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने भी दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी। इसके अलावा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मुतल्लिक जो उलमा और फुक़हा बयान फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि सूरह बकरा की आयत नंबर 177, आयत नंबर 177, इसको पढ़ा जाए, इसका तर्जमा पढ़ा जाए और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को तसव्वुर में रखा जाए तो ऐसा लगता है कि पूरी ये आयत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के किरदार और जिंदगी पर बयान दे रही है। मैं उस आयत का मफहूम जो है वो आपके सामने पेश करता हूं कि जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि फकत नमाज पढ़ने के लिए मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना ये नेकी नहीं है, बल्कि नेकी, बड़ी नेकी क्या है? सबसे बड़ी नेकी ये है कि खुदा की जात पर ईमान हो, नबी पर ईमान हो, उसके मलाइका पर ईमान हो, क़यामत के दिन पर ईमान हो, उसकी किताबों पर ईमान हो और आखिरत के दिन पर ईमान रखना, ये सबसे बड़ी नेकी है। सबसे बड़ी नेकी क्या है? मफहूम आयत करीमा यही है कि बड़ी नेकी फकत मशरिक और मगरिब की तरफ खड़े होकर मुंह करके नमाज पढ़ना नहीं। बड़ी नेकी क्या है कि तुम्हारे पास जो माल है खुशनूदी परवरदिगार के लिए खर्च करना, ये बड़ी नेकी है। ये अजीज़ो अकरबा पर, मसाकीन फुकरा पर, ये मुसाफिरों पर, ये हाजतमंदों पर खर्च करना रज़ाए परवरदिगार के लिए। और उससे भी बढ़कर इसी आयत मजीदा में परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि नेकी ये है कि जब मुश्किल हालात हों तो साबित कदम रहना, सख्त हालातों में पाबंद शरीयत रहना। कितने कितने सख्त मसाइब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर आए, खैमों को आग लगा दी गई, मगर बीबी बाहर नहीं निकली। बीबी ने इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन से राबता किया कि आप बताएं मुझे, आप वक्त के इमाम हैं, मुझे बताएं जल के मर जाएं या खैमों से बाहर निकलें। सख्त हालात में शरीयत पर अमल करना, वो नमाज जो बैठ कर भी पढ़े तो हो जाएगी, उस नमाज को करबला के मैदान में
शाम गरीबा में नमाज शब को खड़े होकर बीबी ने अदा करके बताया कि मुश्किल हालात में साबित कदम अगर कोई बीबी रही है तो ये बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है, जो इस आयत की तफसीर बन के हमारे सामने आई हैं। और फिर खुदा इरशाद फरमाता है कि यही लोग हैं जो मोमिन हैं, यही लोग हैं जो परहेजगार हैं। इसका मुतालिया किया जाए, लुत्फ आएगा। इस दफा ये आयत नंबर 177 जब आप पढ़ेंगे, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सीरत का बोलता हुआ नमूना है सूरह बकरा की ये आयत। इसी तरीके से जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा किस तरीके से मददगार हैं। करबला में थी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मददगार थी, कूफा और शाम में थी तो इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन की मददगार थी, जिंदान में थी तो तमाम कैदी जो थे उन सब की मददगार थी। बीबी के बेहद फजाइल और बेहद कमालात हैं। अगर कोई शख्स परेशान हाल है, परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ती, परेशानियों ने उसका घर देख लिया हुआ है, अगर वो चाहता है कि परेशानियों से निजात पाए तो उसको चाहिए कि 100 मरतबा दरूद की तस्बीह पढ़े, एक तस्बीह पढ़े दरूद की, 100 मरतबा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलवात पढ़े और हदिया करे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को, और फिर अपनी मुश्किल और परेशानी के खत खात्मे की दुआ करे। यकीनन परवरदिगार उसकी दुआ को कबूल और मंजूर फरमाएगा। ये आम अफराद का तरीका नहीं, ये बड़े बड़े उलमा और मराजे उज़ाम इस तरीके से अपनी परेशानी का हल तलाश करते। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वसीला हैं परवरदिगार की बारगाह में परेशानियों को दूर करने का, मसाइब को खत्म करने का। इतने मसाइब इस बीबी ने अपनी जिंदगी में देख लिए हैं कि अब आम आदमी मेरे जैसा गुनाहगार अपनी मुसीबतों को अगर खत्म करना चाहता है ना, तो इस उम्मुल मसाइब बीबी का वास्ता परवरदिगार की बारगाह में देखता है। और इसके अलावा दूसरा अमल क्या कर सकते हैं कि 100 मरतबा दरूद ना पढ़ें, 99 टाइम सलवात पढ़ें, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को हदिया करें और नियत करें कि जब मेरा काम हो जाएगा, ये 100वीं सलवात जो है, जो एक मरतबा रह गई है, ये मैं काम के होने के बाद पढ़ूंगा। और जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वसीला परवरदिगार की बारगाह में पेश करके अपने मकसद की दुआ करे, परवरदिगार यकीनन कामयाब और कामरान करेगा। और एक अमल जो मुहिम काम के लिए, परेशानियों की दूरी के लिए, दुआओं की मुस्तजाबियत के लिए, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के नाम की अदद है 69। अब करना क्या है कि 69 डेज में 69 दिन सलवात पढ़नी है रोजाना 69 दफा, और हर रोज जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के नाम का सदका निकालना है। और जो सदका किसी मोमिन को जो जरूरतमंद हो रोजाना दे सकते हैं तो रोजाना दे दें, वरना ये जब 69 डेज आपके मुकम्मल हों तब इकट्ठा सदका किसी जरूरतमंद को दे दें और बारगाह रब्बुल इज्जत में इस उम्मुल मसाइब बीबी का वास्ता देकर दुआ मांगे तो परवरदिगार आपकी दुआ को जरूर कबूल करेगा। ये बीबी इतनी बड़ी उम्मुल मसाइब है, बचपने से मसाइब देखना शुरू किए, बहुत कम सिनी का आलम था जब अपनी मां की जनाजे को देखा, फिर उसके बाद अपने बाबा के जनाजे को देखा, फिर इस बीबी ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे से तीर भी निकाले हैं, और इसी बीबी ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पामाल लाशा भी देखा है। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगारा जिस तरीके से तूने इन पाकों के नाम से और पाकों के जिक्र से हमें मोहब्बत अता की है, इन पाकों के फरामीन पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।